Namaskar and welcome to yet another episode of Bright Talks by Pacholi Aesthetics and Wellness, the number one clinic according to Times Healthcare Excellence Survey. So we have with us a very eminent neurosurgeon, Dr. Prashant Singh. Namaskar, doctor. And I'm your host, Dr. Divya Agarwal, and we are discussing the intricacies of head injuries and neurosurgery. So let's begin and deep dive into the world of brain surgery and neurosurgeries. So, doctor, before we proceed, I would want to tell all our viewers that tap onto the heart button so that we can understand that you're involved with us and your love and your engagement with us is very, very important. डॉक न्यूरोसर्जरी की जब भी बात आती है सो वी ऑलवेज एसोसिएटेड विद कोमा कि न्यूरोसर्जरी होगी तो एंड में कोमा ही आउटकम होगा सो इज इट ट्रू इज इट एक्चुअली अ मिथ और इज इट अ फैक्ट So basically you have to understand what is coma. So basically when a patient has head injuries or if the brain is not functioning properly, then we can tell that patient has gone into a coma. Okay. So not necessarily that every patient who is having head injury ends up into the coma. Actually, according to the data, almost 80% of head injuries are normal. So only 20% of patients have severe head injury. When we talk about head injury, we think the severe patients which we see, the patients which are lying down in the ICUs and which have not improved, which have not made through their treatment part, they are ending up in coma. Okay, not every patient ends up in coma, and actually it is secondary injuries which are occurring to the brain and the lack of treatment, lack of early treatment in the golden hour, which leads to many patients who actually can be treated, but they end up in coma because of the lack of facilities in the periphery, lack of facilities even in the city. When the patient is getting their head injury or doing the road traffic accident, and a lot of time is wasted in shifting the patient to the care center where the proper care can be taken up, and these patients end up having a lot of secondary damage to the brain, and because of this secondary damage patients end up in coma. Okay, so before neurosurgery, when I was a medical student, I also thought a lot of patients end up in coma and neurosurgery as such is a not very good branch. But when I took the training, when I went into the training and when I saw a lot of patients getting treated for the neurosurgery, and it was like in Bangalore, in National Institute of Mental Health and Neurosciences. So in our institute, we receive head trauma almost every hour. We have 100 to 120 patients per day. And there I saw like patients are getting treated and patients are getting discharged in a day or two. So there my myth about the neurosurgery was completely washed within first week. Patients can get treatment, patients have a good outcome only if they are treated in a timely fashion and they get the proper care. So the time is very important in brain. So now the doctor has made us understand that ऐसा नहीं है कि न्यूरोसर्जरी का आउटकम हमेशा कोमा ही होगा. If timely intervention is done, definitely the neurosurgery can yield wonderful results and you can definitely live a wonderful life afterwards. So I'm your host, Dr. Divya Agarwal, and we are on Bright Talks by Pacholi Aesthetics and Wellness, an educative series which is an initiative by Dr. Preeti Seth. So, doctor, the next question is TV में dramas में हम देखते हैं इंजरी हुई मेमोरी लॉस हो गया, दोबारा इंजरी हुई मेमोरी वापस आ गई. सो इज इट एक्चुअली अ ड्रामा, अ फिक्शन और देयर इज सम ट्रूथ बिहाइंड इट? सो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड अमनेशिया. सो अगर आपको चोट लगी है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक हमारा जो ब्रेन है इट्स अ कंप्यूटर. ओके, सो वी रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आईज, वी रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर ईयर्स, okay, and from our senses. All the 5 senses are taking the information: smell, touch, feelings, and so these sensations are stored in the brain. Okay, so we have a hard disk where everything is getting stored, and all these are interlinked things. So suppose a patient is having a head trauma. During that time
the brain is not able to function properly. So he can have a temporary amnesia, like he may not remember for like what happened to him during trauma, or immediately after the trauma, or immediately before the trauma. So that is called temporary. Like, the on that spot, patient was having a temporary amnesia. But sometimes patients may end up in having this thing, like they can't remember anything. Okay, they end up in losing their memory. Okay, this is because of the damage in the brain. Okay, and this cannot be treated that every patient ends up like this, but there are some patients who may end up in that permanent amnesia or retrograde amnesia. I mean, they forget what has happened previously in their life. But again, these patients may again regain their amnesia because of head trauma. This is not a common thing which can occur in day-to-day life. Like a trauma has occurred to a brain, and again that is reversed with the trauma, unlikely. Okay, so what can it recover? It is like brain is recovering on itself, and we are rehabilitating the brain. We are giving training to the brain, in the sense like we are making the patient remember previous things. Okay, in that way, patient can recover to some extent, and all those amnesia and things recover gradually. It doesn't happen like a snap. Okay. So now you have the answer with you. ऐसा आधा सच है and complete सच नहीं है. So obviously with the injury there can be amnesia. आपकी याददाश्त जा सकती है. But in a snap you cannot recover back. It takes time. आपको धीरे धीरे उसमें effort करना पड़ेगा, medical help लेना पड़ेगा, and that is how you're going to revive back. So for all those who are live with us, please tap onto the heart button and also keep showering your questions. We'll be taking in the end, and Dr. Prashant is going to answer all your queries related to brain injuries and neurosurgeries. So, Doctor, blood clots या minor head injuries का later stages पे भी कोई repercussion हो सकता है? क्या ऐसा है कि बाद में कोई symptoms आए जो उस time पे minor head injury में नहीं आए हो? Is it somewhere related to some kind of disorder later on which we can experience? Yeah, so let us understand the head injury spectrum as such. So anything, मतलब अगर आप बात करें head injury की, anything which is causing an injury to the scalp or a head of the patient, that is called a head injury. This can be a very minor thing, there can be just a bump or swelling or just a minor cut over the head. That is also a head injury. Okay. And a patient is having a severe blow to the head while riding a bike, patient might fell down while playing or while going out, and these patients may suffer like there is a depression or there is a fracture in the skull. This is also a head injury. But these are the head injuries which we can see, which we can see from the naked eye. We can see that okay, there is a depression, there is an opening in the skull. But there are injuries which are internal, which can occur inside the brain. These cannot be seen. These are identified with the signs of the patients. Okay, so suppose a patient is having a head injury, and that can also have a severe repercussions like intracranial clot. Patient might have bleeding inside the skull. Okay, and the inside the skull, the bleeding can be categorized into various categories because our brain is very well protected into multiple layers. So it is not like that there is a skull और skull के अंदर brain रखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है. तो हमारे brain को बहुत ही अच्छी तरह से एक protective layer में fix किया गया है. तो हमारा brain है, अब brain को भगवान ने laminate कर दिया है. तो अब lamination किया है, तो lamination को उसको pyometry कहेंगे हम, ठीक है. तो एक thin layer of pyometry is enclosing the whole brain and it is covering the brain very tightly. Okay, but pyometry is very weak. Okay, it is just a lamination. It's just a shiny surface of the brain. It cannot be separated from the brain. Then there is the arachnoid layer. Now this arachnoid layer is very flimsy, film-like tissue, and you can tell that it has multiple layers and trabeculations in it, and there is a fluid which is going on in this arachnoid, subarachnoid space. And this fluid is the CSF, the central cerebrospinal fluid. And this fluid covers the brain completely. Okay. And the brain is always floating in this fluid. So the brain is protected. So the minor
जॉबलिंग ऑफ द हेड और व्हेन वी आर नॉडिंग और व्हेन वी आर वॉकिंग, उस टाइम पे हमारा ब्रेन हमारे हड्डियों से नहीं टकराता, because it is very well protected in that gel-like arachnoid and the CSF, which is combined and forming a gel-like tissue. Okay, so arachnoid with the CSF is causing a cushioning effect on the brain. अब एरेक्नोइड के बाद में देयर इज ए ड्यूरामेटर, बिकॉज अभी हमने बताया कि पानी भरा हुआ है, अब ये पानी तो लीक हो जाएगा, बिल्कुल, तो पानी लीक ना हो, सो देयर इज ए प्रोटेक्टिव ड्यूरामेटर. सो ड्यूरामेटर इज ए वेरी थिक ग्लिस्टनिंग स्ट्रक्चर विच इज डेंसली अडेरेंट टू द स्कल. एक तरफ स्कल से चिपका हुआ है और दूसरी तरफ ये ब्रेन के लिए सपोर्ट्स भी बना रहा है. तो ऐसे ब्रेन के नीचे की तरफ आके ये फोल्ड्स बनाता है, ब्रेन के अंदर फोल्ड्स बनाता है, और ये ब्रेन के अलग अलग कंपार्टमेंट्स को सपोर्ट करता है. तो हमारा जो ब्रेन है बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड है. अब अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकता है वो ड्यूरामेटर के बाहर हो, सो इट कैन, दिस इज कॉल्ड एपिड्यूरल ब्लीडिंग. अब वो ड्यूरामेटर के नीचे होगी तो होगी सबड्यूरल ब्लीडिंग. अगर वो एरेक्नोइड लेयर में हो गई तो वो सब एरेक्नोइड ब्लीडिंग हो गई. और ज़्यादा सीवियर चोट लगी, ब्रेन के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है, सो हम कहेंगे इंट्रा पेरेन्काइमल ब्लीडिंग या ब्लड क्लॉट विद इन द ब्रेन. ओके, सो these are the different categories of the clot which can occur in the brain. And because previously, आज से 30-40 साल पहले जब CT scans नहीं थे, तब इनको आइडेंटिफाई करना ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारे पास कोई मोडालिटी नहीं थी डॉक्टर्स के पास कि पहचान पाए कि भाई कौन सी ब्लीडिंग हुई है. तो क्या होता था कि लाइक दे हैव रूडिमेंट्री investigations, like they used to do DSA for each and every case. They used to do X-rays after injecting a dye in the brain, after injecting air in the brain. तो वो सब अब नहीं रहा है. अब हमारे पास CT स्कैन्स हैं, MRI हैं, ठीक है. तो CT स्कैन से हमको पता लग जाता है कि कौन सी टाइप ऑफ ब्लीडिंग है और कितनी सीवियर ब्लीडिंग है, और पेशेंट्स को हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी या फिर वी कैन वेट एंड वॉच बाय मेडिकल ट्रीटमेंट. सो ऑल दोज थिंग्स आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशंस. अभी आपका जो सवाल है वो ये है कि लाइक क्या पेशेंट्स को बाद में चल के रिपरकशंस होते हैं, नहीं होते जी. अभी हमने क्या सोचा, सुना कि ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो जानलेवा भी हो सकते हैं और वो माइनर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी लोकेशन में है और कितना बड़ा ब्लड क्लॉट है. अब बात आ गई आगे चल के रिपरकशंस होने की. अब देखिए, ब्रेन जो है, हम लोग क्या सोचते हैं ब्रेन एक सिंपल ऑर्गन है, ठीक है, पर जैसे जैसे हम आगे ब्रेन के बारे में जानते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोगों को आगे रिसर्च से मालूम पड़ता जा रहा है, तो हमें मालूम पड़ा है कि ब्रेन भी एक मल्टी कंपार्टमेंट ऑर्गन है. यू नो, there are different parts of brain which do different activities. There is a one part of brain which just encodes the information sent by the eyes. There is one part of the brain which encodes कि भाई क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या सुन रहे हैं, तो ईयर के इंफॉर्मेशन को एनकोड करेगा, डिकोड करेगा. Some part of the brain is involved in the motor control of the body. Some part of the brain is controlled in the balancing of the body. Some part is involved in हम लोग क्या बोल रहे हैं. So there are different compartments in the brain. अब जो कंपार्टमेंट डैमेज होगा, ठीक है, उस तरह के पेशेंट को सिम्टम आएंगे. मान लो कि अगर किसी का हाथ का एरिया कंट्रोल करने वाला डैमेज हो गया चोट लगने का, तो उसके हाथ में कमजोरी आ जाएगी. अगर उसके बोलने के एरिया में डैमेज आ गया तो ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक. अब आप ये भी समझ सकते हैं कि देखिए, ब्रेन के अंदर ये सब डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. तो देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वायरिंग्स, लॉट्स ऑफ न्यूरॉन्स विच आर इंटरकनेक्टेड. दे आर सेंडिंग देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, एंड all this is in the form of electrical current. Okay, now to go with that type of electrical activities and all those information sharing and taking back, अगर हमारा कहीं भी एक्टिविटीज कम हो गई या फिर कुछ डैमेज हो गया, डेफिनेटली हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग में फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, अब कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं ब्रेन के अंदर जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, ठीक है, जिसमें आदमी को ऊपर से कोई चोट नहीं लगती, बट the electrical activities or the neurons within the brain are damaged. This type of injuries are called like concussions or diffuse axonal injuries. Concussion is a very mild form of injury in which for a short time patient may lose consciousness. He may have some loss of memory, okay, and because the electrical activity is deranged in the brain, but these patients usually recover. Diffuse axonal injury means like it's a severe form of injury where no brain is
accelerated and deaccelerated in a very fast manner. Like, there is sudden jolt to the brain while traveling in a car, high speed accident, or during a fall, or during a sometimes there is a very violent shaking of the head. That time what happens is some part of the brain is stable while some part which that moves away. So the connections between the different areas of the brains are damaged. If that occurs, the brain, nobody can repair the brain as such. Okay, that we have to understand. Okay, so brain recovers on itself. Okay, as a neurosurgeon, we cannot repair the damages in the brain. Okay, so what happens is these connections, when they are damaged, they recover slowly, and up to what extent they are damaged, it will take that much time to recover. Okay, and you can also understand that if a patient is young, okay, then recovery will be better compared to the patient who are like little old age, where the regenerative capacity of the body is less. So that is a different age groups, the outcomes will be different. Long term effects, yes, suppose there is a damage to the brain, and currently patient is having some damage in the brain, future के अंदर this can represent in the form of like seizures. Patient may have post traumatic epilepsy. Okay, and also like they can have, many patients come to us कि सर हमको चोट लगी थी, उसके बाद में हमारी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं रह गई है, हमें कुछ याद नहीं रहता, हमारी कैलकुलेशंस पहले बहुत अच्छी थी, अब हम नहीं कर पाते. So we don't have actual ways of measuring it. Yes, with help of neuropsychology, we are taking some steps, and we are nowadays in capable of measuring these deficits which patients are having. But there is no way that we can treat them. It is like patients have to recover with them, like patients recover with practice. So brain is like a organ which has forgotten something. Okay, and we have to again treat it or again train it to do the same activities which it has forgotten. So long term repercussions होते हैं, ठीक है, but किस extent तक होंगे, कितने होंगे किस patient में, that is completely unpredictable. So brain actually is a very beautiful organ, देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है, and as doctor said, इतने सारे electrical connections हैं, brain का हर एक part dissociated है, yet connected है in some or the other way. And definitely we all can relate walnut whenever we think of brain. So doctor, पैरालिसिस एंड abnormal movements भी पोस्ट न्यूरोसर्जरी बहुत देखने को मिलते हैं. सो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ये आउटकम आ सकता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेन के अंदर कुछ पार्ट्स हैं जो बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं. अगर वो पार्ट्स डैमेज हो गए, या फिर उन पार्ट्स से जो फाइबर्स, जो कनेक्शंस जा रहे थे हमारे हाथ और पैर के अंदर, जो नर्व्स के अंदर जा रहे थे, वो कनेक्शंस डैमेज हो गए, तो जो भी हमारा ब्रेन सोच रहा है वो सिग्नल वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, या फिर हमारा सिग्नल जनरेशन के जो न्यूरॉन्स है वही डैमेज हो गए, तो उस केस में हमको पैरालिसिस, पेशेंट्स को मतलब पैरालिसिस हो जाएगा. अब इस केस के अंदर डिपेंड करता है, मान लो कि पेशेंट का ब्लड क्लॉट ही उस जगह पर था या फिर चोट ही उस जगह पर लगी थी, तो एज ए डॉक्टर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट टेक आउट दैट ब्लड क्लॉट. We cannot repair that brain उस जगह पर जाके. But sometimes what happens is that blood clot is just compressing that area. Okay, the blood clot is in the arachnoid space and the epidural space. So it is not damaging the brain, but it is compressing the brain. So when the brain is compressed, so the blood supply is not proper to that part of the brain. और compression की वजह से वो काम करना बंद कर देता है कुछ देर के लिए. और जब हम लोग सर्जरी करते हैं, हम लोग ब्लड क्लॉट को हटा देते हैं, जो भी ऑफेंडिंग फैक्टर्स थे, जैसे कि अगर स्कल उसके ऊपर दबा पड़ा है तो हम उसको हटा देते हैं, तो ये वाले ब्रेन रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि इंटरनल ब्रेन एज सच हेल्दी था, बट वो काम क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर ब्लड क्लॉट पड़ा हुआ था या फिर वो दबा पड़ा था, तो इसलिए वो काम नहीं कर पा रहा था. तो ऐसे पेशेंट्स जिसके अंदर परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है ब्रेन में, वो तो रिकवर कर जाएंगे. बट जो पेशेंट्स परमानेंट डैमेज हो चुका है, मान लो कि हड्डी टूट के अंदर चली गई और उसने ब्रेन को चीर दिया, या फिर ब्रेन के अंदर परमानेंट डैमेज हो गया, या फिर ब्रेन की आर्टरी फट गई और वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया, तो वैसे पेशेंट्स के रिकवरी के चांसेस कम होते हैं. और वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, वी कैन जस्ट हेल्प द पेशेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइक रिमूविंग द ब्लड क्लॉट, कंट्रोलिंग द ब्लीडिंग, एंड देन जैसे जैसे
टाइम बढ़ेगा जैसे जैसे उसकी रिकवरी होगी पेशेंट्स की, सम पेशेंट्स रिकवर, सम पेशेंट्स डोंट रिकवर। सर्जरीज के बाद बहुत कॉमन है, तो क्या ऐसे सिचुएशंस है जो इसको ट्रिगर कर देते हैं बाद में? सिर्फ सर्जरी के आउटकम में सीजर आना या कोई और भी फैक्टर्स हैं जो उसको ट्रिगर करते हैं? क्या लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये सीजर्स जो हैं वो और प्रोमिनेंटली ट्रिगर ना हो? तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि सीजर भी एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। नॉर्मली जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है वो बहुत ही एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में हो रही है कि भाई हमें एक थॉट आया, उस थॉट को मुझे बोलना है, तो मेरे वो वाला जो थॉट है जो भी मुझे बोलना है वो मेरे बोलने वाले इलाके में गया, एंड दैट एरिया इज टेलिंग माई टंग एंड माई लिप्स टू मूव इन सर्टन फैशन, और तभी मैं उस आवाज़ को निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, बट अगर ये एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाए तो मान लो कि शॉर्ट सर्किट हो गया ब्रेन के अंदर, तो व्हाट विल हैपन इज पेशेंट्स विल एंड अप हैविंग some abnormal movements, like they may be having a jerky movement of the face, they can have a jerky movement of the hand, or they can have a jerky movement involving whole half of the body. Some patients may go up in having a continuous seizures in all four limbs, हाथ ऐसे मुंह ऐसे चला जाएगा, अपरोलिंग ऑफ आई बॉल्स हो जाएंगी, टंग बाइट हो जाएगा, इवन यूरिन स्टूल पास हो जाएंगे। सो दैट टाइप ऑफ सीजर इज मीन्स कि उनकी बॉडी में एक जगह पे शॉर्ट सर्किट चालू हुआ ब्रेन में, एंड दैट शॉर्ट सर्किट इज स्प्रेड ऑल ओवर द ब्रेन। ओके, सो दैट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड सीजर। अगर किसी एक जगह पर सीजर हुआ है, सो दैट कैन बी लाइक दैट इज अ फोकल सीजर। फोकल एक ही एरिया में हुआ और बॉडी ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर ली। अब आप बता रहे हैं कि हेड इंजरी के बाद, देखिए हेड इंजरी में अगर ब्रेन को डैमेज हुआ है, ठीक है, तो हमारी बॉडी पूरी कोशिश करती है उसको अपने आप रिपेयर करने की। ठीक है, बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ nobody can predict, but sometimes what happens is this damaged part of the brain can lead to a epicenter of abnormal electrical activity, कि भाई जहाँ से डैमेज पार्ट से हमेशा एबनॉर्मल एक्टिविटी आएगी और जिसकी वजह से पेशेंट्स को सीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, सो यू टू अंडरस्टैंड इन दिस वे कि मान लो किसी के पेशेंट्स के ब्रेन में छोटा सा एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। अब इस एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर रहे, मेडिसिन नहीं ले रहे पेशेंट्स, ठीक से इलाज नहीं ले रहे, और वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसको हर रोज़ हो रही है, पेशेंट को हर रोज़ शाम को हो जाती है, कभी सुबह में हो जाती है। तो ऐसी पेशेंट्स में जब डेली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, डेली शॉर्ट सर्किट होगा, तो उसके पेशेंट्स के अंदर ब्रेन के अंदर और ज़्यादा डैमेज होगा। और ब्रेन जो है वो एक मेमोरी ऑर्गन है, मतलब शायद आप कुछ काम करते होंगे, मैं कुछ काम करता हूँगा, तो हम जिस काम को रिपीटेडली करेंगे तो उसकी एक मेमोरी बन जाती है, तो ब्रेन के अंदर एक सिग्नल पाथवे बन जाता है उसका। सो दिस इज कॉल्ड लाइक you train your brain in that way. Somebody is good at running, somebody is good at writing, very good handwriting, somebody is good in cooking, cutting the vegetables, somebody is good in doing surgery, somebody is good in stitching the clothes. So that is like working memory which is occurring in our brain. So that way अगर किसी को रोज सीजर हो रहे हैं तो that scissors becomes the part of the brain. Then there is a network modulation. ब्रेन के अंदर चेंजेस होने लग जाते हैं, और एक बार अगर ये सब नेटवर्क मॉड्यूलेशंस हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, तो सीजर्स कंट्रोल करना और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के अंदर एक टेक होम मैसेज ये है कि अगर किसी को चोट लगी है तो चोट लगने के बाद में अगर उसको सीजर्स आ रहे हैं तो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट और दवाई बहुत ज़रूरी है। अगर उसके सीजर्स दवाई से कंट्रोल हो रहे हैं तो उसको दवाई एडिक्वेट टाइम तक लेनी चाहिए, और ये एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही बता पाएगा कि कितने दिनों तक दवाई लेनी चाहिए। ठीक है, कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे डेढ़ महीना हो गया, 1.5 महीने से सिर तो आई नहीं है, डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी, हम क्यों लें इसको। ठीक है, तो आपको इस तरह से लेना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रेन है ना वो बहुत धीरे धीरे रिकवर होता है, बहुत धीरे धीरे ही डेवलप होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने से करीब उसको 1.5 से 2 साल लग जाते हैं जब तक वो बाकी सब चीज़ें सीख पाता है, बोलना, चलना, पेन पकड़ना। ठीक है, और इनफैक्ट उसकी बात भी नहीं चाहिए, मतलब 3-4 साल तक का बच्चा ही सब काम कर पाएगा।
वैसे ही अगर आप कुछ नई स्किल सीखना चाहते हैं, अगर आप आज सोचते हैं कि भाई आज मैं साइकिल चलाना सीख लूँ, या फिर आज मैं कुछ गिटार बजाना सीख लूँ, या कुछ लिखना सीख लूँ, कोई नई लैंग्वेज ही लिखना सीख लो, आपको काफ़ी टाइम लगेगा अपने ब्रेन को ट्रेन करने में, घंटे लग जाएंगे। तो जब उसको ट्रेन करने में इतना टाइम लग रहा है तो उसको रिपेयर करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो जब रिपेयर करने में टाइम लगेगा तो वी हैव टू गिव एडिक्वेट टाइम टू द ब्रेन, कि भाई ब्रेन आराम से रिकवर कर जाए, और एक बार ऐसा लगे कि हाँ भाई अब अच्छी तरह से रिकवर हो गया है, अब सीजर्स नहीं आएंगे, तो हम उसकी मेडिसिन रोक देंगे। अब आप बोलेंगे कि एज ए न्यूरोसर्जन वी डील विद द पेशेंट्स हु आर हैविंग सीजर्स, बट दिस इज नॉट, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके एक्सपर्ट हैं, लेकिन वी टेक हेल्प ऑफ आवर न्यूरोलॉजी फ्रेंड्स, ओके, न्यूरोलॉजी कलीग्स। सो न्यूरोलॉजिस्ट आर द वन हु ट्रीट द एपिलेप्सी, राइट। सो अगर एक्सीडेंट के बाद भी अगर किसी को सीजर्स आ रहे हैं, definitely we take help of our neurology colleagues, okay, because they are day in and day out treating the seizures, right. So we both as a team evaluate the patients, we get EEGs, there are many investigations which can be done to know that patient is having abnormal activity in the brain or not. So once we are sure that there is no more electrical activity or abnormal activity occurring in the brain, then and then only we stop the medicines. And there are actually guidelines which have come up, okay, and the guidelines are not very difficult, okay, to learn. So basically you have to understand that it takes at least 2 years so that you can be sure that brain has recovered completely, and there is less chances of occurring seizures in the future. There is never a zero, okay. अगर किसी को 2 साल तक सीजर्स नहीं आए और उसके बाद भी अगर डॉक्टर ने दवाई बंद कर दी, देन देयर आर स्टिल चांसेस के दैट पेशेंट मे एंड अप इन हैविंग सीजर्स, ठीक है। सो यूजुअली डोंट टेक द डिसीजंस योरसेल्फ, देयर आर मेनी एक्सपर्ट्स अवेलेबल in almost every city of India nowadays, right? So please consult a neurologist and a neurosurgeon to take these decisions, okay? And these decisions are really important because post-traumatic seizures is one thing which is very disabling, पेशेंट्स अगर पहले ध्यान नहीं देंगे और अगर उनको ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिलेगा, ठीक है, तो बाद में ये बढ़ जाते हैं। एंड वंस दैट मेमोरी लूप और नेटवर्क मॉड्यूलेशन अकर्स इन द ब्रेन, then it is very difficult to treat it, okay. So prevention is better than cure, so please take the treatment which is initially possible instead of waiting and going into something which can ruin the patient's whole life. Not even the patients, even the relatives, caregivers also suffer. Yeah. So it's a huge thing which we need to tackle very gently and very responsibly. Beautiful information given by Dr. Prashant, and like he said, brain एक memory organ है. Obviously इससे related मुझे एक और बात समझ में आई है, because clinical pathways जैसे develop हो जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर प्रशांत ने सीजर्स के लिए बताया, तो कोई भी चीज़, कोई हैबिट के लिए भी डेफिनेटली आई एम श्योर हमारे ब्रेन में पाथवेज डेवलप हो जाते होंगे. सो दिस इज़ अ लर्निंग मे बी वी कैन टेक फ्रॉम टुडेज सेशन, दैट आप किसी चीज़ को रिपीटेडली कितना करते हैं उस पर डिपेंड करता है आप उस चीज़ में कितने परफेक्ट और कितने अच्छे हो पाएंगे. सो ब्रेन इज़ अ ऑर्गन जो कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके फेवर में काम करता जाएगा, और मे बी आप जितना रॉन्ग प्रैक्टिसेस करेंगे उतना आपके नेगेटिव फेवर में काम करेगा. सो इट इज़ अप टू यू हाउ यू यूज़ योर दिस ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग ऑर्गन गिफ्टेड बाय गॉड. सो डॉक, फिजिकली जो भी ट्रॉमा है उससे तो हम न्यूरोसर्जरी से करेक्ट कर ही सकते हैं. क्या मेंटल ट्रॉमा जो है वो भी न्यूरोसर्जरी के थ्रू कनेक्ट हो सकता है? कई लोगों को ये भी डाउट रहता है. मैन वी विद योर प्लेटफॉर्म वी वांटेड टू अंडरस्टैंड. सो सी, psychosurgery, this is called something like, we control or we do the treatment of psychiatric diseases with the help of surgery. So this is the emerging field, and if you go back to the initial years of neurosurgery, a lot of understanding about neurosurgery happened because in mental asylums the senior doctors started doing lobectomies of the brain. They started doing frontal lobectomies. Even the backdrop of our institute, which is the National Institute of Mental Health and Neurosciences in Bangalore, which is called NIMHANS today. So that was initially established as a mental institute. The All India Mental Institute was established in 1921
by then King of Mysore. And that was established for the treatment of the psychiatric patients who came from the World War One. Okay, so as a part of that, that institute developed, and as a psychiatric institute, as a one of the best institutes in India and South Asia, and but what happened is like how the neurosurgery came to it. So neurosurgery came to it in the form of like they also started collaborating with international people and doing psychosurgeries, doing frontal lobectomies. And then they realized that yes, the brain surgery should happen in India. And then few of the eminent neurosurgeons got trained. Few of the directors of the institute sent few people outside and they came and they started neurosurgeries in 1950s. Okay, so initially days of neurosurgery and psychiatric surgery were very closely related to each other. Nowadays, what has happened is uh, we are day by day knowing that each area of the brain is involved in certain type of psychiatric diseases. So as our knowledge about psychiatric diseases is increasing, right? Similarly, we are also having that what we can do in a form of surgery to treat the patients. But this topic is a very huge topic. We cannot continuously discuss in it. And just to give you presumptions, like there are diseases where there is a provision nowadays, like we can treat depression, we can treat obsessive compulsive disorders, we can treat like tics, or the sometimes patients are having nervosis, like bulimia, overeating syndromes. So these syndromes can also be treated with the help of brain surgeries, but these brain surgeries are not simple surgeries. Here what we do is either we do a lesioning, we go and target some definite part of the brain, okay, and that okay, this part is working abnormally, and we should put some electrode in it, target there, measure it with the imaging. So this is called stereotactic surgery or functional neurosurgery, where we target it and we create a lesion. Or what we can do is we can place a electrode there, which will be connected to a machine, which will give signals continuously there. So this is called DBS, so like deep brain stimulation surgeries. So these are like currently deep brain stimulation surgeries in India is like for Parkinson's disease, very common, right? But yeah, but in foreign countries and now even in India, it is emerging that people are started doing surgeries for psychiatric diseases and mental diseases also. But that topic is itself a huge. We can do a n number of sessions on it. We can do a session for Parkinson's, we can do a session for depression, we can do a session for obsessive compulsive disorders, and that is out of scope of discussing here. बट टू अंडरस्टैंड इन जनरल पब्लिक के लिए मैं वापस से बोलना चाहूँगा कि देखिए, मेंटल ट्रोमा एज सच इज़ अ डिसीज़ which is not controlled or treated by neurosurgeons, right? So neurosurgeons take help of psychiatrists. Psychiatrists evaluate the diseases. They are the expert people in it. They are well trained. And it is a huge field. One diagnosis wrong and one treatment wrong can really damage a lot of years of the patients, right? So don't take it lightly. Mental trauma is such thing like you should take help. You can take help, and the social bonding and the social support as well as the medical support is really required for a brain. And it is not a simple topic कि भाई आपको हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, I have seen sometimes a patient is suffering, he is suffering a lot, okay, and what happens is like the relatives don't understand it, so the patient himself is not able to do his activities. He's not able to speak because of the head injury, or he's having some weakness in the hand. Now this patient is continuously thinking that he has become a dependent, or like he's continuously irritated that nobody is understanding me, and the relatives are also agitated कि यार हम इसकी कितनी सेवा करते हैं फिर भी नहीं सुनता, और लाइक ये ऐसे चिल्लाते रहते हैं हमारे बाबूजी, और ये लड़का है ये रात भर सोता नहीं है, किसी को सुनने नहीं देता. But that things have to be taken in very holistic manner. You have to understand कि आप अपने आप को सिचुएशन में रख के देखो कि भी मेरा एक हाथ नहीं हिल रहा है, या फिर एक पाँव नहीं हिल रहा है,
और जो पेशेंट बहुत बात करता था पहले अब वो बोल नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द हेड ट्रॉमा. So that mental trauma which occurs to the patient as well as the relatives is huge. And many times in our society we ignore all these things. We think that यार ये सब तो कोई बात नहीं है, सबको छोड़ दो, बिकॉज द अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे लोगों के बीच में. एंड दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. वी नीड टू ट्रीट दैट. ओके. एंड टू बी just give you a presumption or total outlook of it, you understand, like this is called neuropsychiatry, okay, and neurorehabilitation. When you go for neurorehabilitation, you need a psychologist support also, okay. So psychologist support is like they are trained people, those who have done that psychology, and there are many students from NIMHANS, from AIMS, who have done their PhDs in psychology, and they are just targeting themselves on rehabilitation. They are targeting themselves on like what happens after the head trauma, if head trauma is in frontal lobe, if head trauma is in some other lobe, how to treat them, how to make them rehabilitate. कैसे उन लोगों को जिनको हेड ट्रॉमा हो गया है, जिनके ब्रेन में कुछ डैमेजेस, उनको मेन स्ट्रीम में वापस लेके आएँ, कैसे उनके ब्रेन को ट्रीट करें, what are the exercises, what are the interventions which we can give. So itself is a huge field, okay. I think mental trauma as such is a general term, okay, but it involves lot of things, you know, like physical trauma or like emotional trauma, a lot of things. As a neurosurgeon, to be very frankly speaking, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, और like you know, many times we also feel that we are not able to help the patients in the way they require, in the way of the emotional support they need. In that case, you know, the psychologists or the social counselors come in a big role. They play a big role. Support groups play a big role. Support groups हमारे इंडिया में बहुत कम होते हैं, ठीक है, but there are now communities which are coming up. हम लोग लेके आ रहे हैं, like support groups create हो रहे हैं which can solve normal questions of the people, normal queries of the people. And these are really important as a part of society, that we should come forward, make those things and support each other emotionally, so that mental trauma is minimized and the people are becoming more productive. People may become more productive in their life, you know, instead of just sitting down at home कि भाई मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, और पूरे घर वाले भी मतलब बेचारे परेशान होकर बैठे रहे. They need some support. They need something which can elevate them and bring out of them from the mental trauma. Wonderful information shared by doctor. I mean, it is for me also that I've first time understood that जो mental trauma है उसमें भी कहीं ना कहीं सर्जरी का स्कोप है, and it's a vast field, rightly said by doctor. I mean, mental trauma के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, and इसके बारे में जितनी बात की जाए कम है. It's a very vast field. I mean, there are a lot of intricacies involved in it. केयर गिवर्स के लिए जितना ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, आप समझिए उतना ही ये जो खुद सफ़रर है उसके लिए डिफ़िकल्ट है. एंड वी हैव टू एक्चुअली गो इनटू हिज शूज़ एंड अंडरस्टैंड कि वो क्यों सफ़र कर रहा है, कैसे सफ़र कर रहा है, एंड कौन सा दरवाज़ा आप खटखटाएं कि आप उसको सही हेल्प दे पाएँ. सो इट इज़ ऑन यू टू डिसाइड एंड टू एक्चुअली गो एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प योर लव्ड वंस. So, Dr. Prashant, next question which one of our viewers had sent was कि क्या एडवांसमेंट्स हैं आजकल न्यूरोसर्जरी में कि हम मिनिमाइज कर सकें ये सारे रिस्क फैक्टर्स या सारे आउटकम्स जो हमने डेंजरस वाले जिनकी बात की, जिससे कि लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब ब्रेन इंजरीज के बाद या न्यूरोसर्जरीज के बाद आउटकम बहुत पॉजिटिव है. देखिए, इसके अंदर है ना, मैं आपको एक जगह फोकस करना चाहूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब किसी को भी चोट लगती है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंजरीज विच अकर टू द ब्रेन. वन इज़ अ प्राइमरी इंसल्ट. मान लो कि भाई कोई एक पेशेंट है या फिर वो जा रहा था एंड देयर इज़ ए 2-wheeler बाइक एक्सीडेंट, सो ही स्लिप्ड एंड फेल एंड हेड इज़ इंजर्ड, और वो मतलब बाजू में एक पत्थर पड़ा था, उस पर उसका सिर टकरा गया. तो जब सिर टकराया वहाँ पर, तब उसको जो इंसल्ट हुई, जो ब्रेन में डैमेज हुआ, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी इंजरी. अब इंजरी होने के बाद में पेशेंट वहीं पर पड़ा हुआ है, ठीक है, और पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, या फिर उनका ब्लड लॉस इतना हो गया है कि ब्लड लॉस की वजह से जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है,
ठीक है, या फिर ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट बन गया, अब ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन दब चुका है, तो पार्ट ऑफ द ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। सो इन चीज़ों की वजह से जो डैमेज होगा ब्रेन को, दैट इज़ अ सेकेंडरी डैमेज। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी डैमेज है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, एज ए डॉक्टर अर्ली ट्रीटमेंट देके, ठीक है, एज अ केयर गिवर, एज अ हेल्पिंग एंजल ना। अगर आप बाई स्टैंडर्ड किसी को देखते हैं भी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा के हम इन सब चीज़ों को, सेकेंडरी डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। हम प्राइमरी चीज़ को कैसे प्रिवेंट करें भाई, वो तो हम लोग आपको बोल ही रहे हैं, वो तो सब लोग, ये इतने सारे रूल्स बन रहे हैं, आप हेलमेट पहन के चलिए, आप काम पर जाते हैं तो काम पर जाने के बाद में बोला जाता है कि नहीं, सेफ्टी मेजर्स है कंपनीज के अंदर कि भैया यू शुड हैव अ हार्ड हेलमेट, यू नो, यू शुड हैव अ हार्ड पीवीसी हेलमेट एट द कंस्ट्रक्शन साइट। तो पीपल टेक इट वेरी लाइटली, या क्या ज़रूरत है इसकी, इसकी सिर पे लगा के रखो। बट जब ट्रॉमा होता है ना, तो वो नहीं देखता कि भाई व्हाट इज़ योर पोजीशन, आप किस लेवल से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अब बैड थिंग, अ ट्रॉमा टू द स्कल कैन हैपन टू एनीवन, so it is always better to have a protection to prevent the primary damage. So primary damage को prevent करने के लिए तो हमें अपने measures लेने हैं भाई, ठीक से रोड सेफ्टी लगानी है, हेलमेट लेना है, वर्क प्लेस पर आराम से करना है, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स ऑल्सो वेयर प्रोटेक्टिव गियर। उसके बाद में एडवांसमेंट की आप बात करें तो सेकेंडरी डैमेज, जो सेकेंडरी डैमेज हो रहे हैं ब्रेन्स के अंदर, तो सेकेंडरी डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एडवांसमेंट्स कर सकते हैं। अब सेकेंडरी एडवांसमेंट के हॉस्पिटल लेके जाएं तो अर्ली रिस्पॉन्स सिस्टम। सो इन आवर एज ग्रुप, लाइक हमने ही देखा है कि पिछले 20 साल में कैसे हमारा जो इंडियन हेल्थ केयर है वो धीरे से इवॉल्व हो रहा है। प्रीवियसली शायद एम्बुलेंस बुलाने पर भी नहीं आते थे, अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। एटलीस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज, हॉस्पिटल्स, हर जगह इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अब एम्बुलेंस से लोगों को लेके जाया जा रहा है। बट स्टिल वी आर फार बिहाइंड। अगर हम लोग डेवलप्ड नेशंस की बात करें, वेयर पीपल रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी लेस, वेयर देयर इज एयर पिकअप, where there is no ambulance services are really good, emergency services are really good. So we need to do a lot of work in this field. Okay. उसके बाद में आती है एडवांसमेंट्स की बात में, तो हम लोग जो सर्जरीज करते हैं, तो एज सच आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इफ देयर इज अ ट्रॉमा टू द ब्रेन, तो देयर इज अ ब्लड क्लॉट, राइट। नाउ दिस ब्लड क्लॉट नीड्स टू बी रिमूव्ड, राइट। So this blood clot needs to be removed. So as a surgeon, what we can do is we can cut your skull and we can remove it, right? So what is advancement? Advancement is that sometimes we need not remove it completely, or like we don't have to open large skull. We may open very little part of the, we may make a small hole in the brain, okay? But that is only when in very selected cases, you understand, like sometimes patients come and ask me, sir, कि आप लेज़र सर्जरी कर देंगे क्या हेड इंजरी के लिए? तो आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, हेड इंजरी के लिए लेज़र सर्जरी नहीं होती है, ठीक है। आप ब्लड क्लॉट ब्रेन के अंदर से आपको निकालना है, तो उसके लिए हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं कि छोटी ओपनिंग बनाएं, या फिर यू कैन गो फॉर एंडोस्कोपिक सर्जरीज। बट देन ऑल्सो इफ द ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो रही है अगर, तो ब्रेन को जगह बनानी पड़ेगी। और अगर आपको ब्रेन के लिए जगह बनानी है, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट के बाद में ब्रेन में स्वेलिंग होगी। अब जगह बनाने के लिए आप लेज़र सर्जरी कैसे करोगे? जगह बनाने के लिए तो आपको बोन का पीस निकाल के रखना है, ठीक है। सो फॉर दैट थिंग आई डोंट थिंक कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि डॉक्टर इज़ द बेस्ट person to take the decisions, okay? So don't impose your knowledge on us. Please come, discuss, learn about it, and once you have learned about it, then we can take a combined decision. But one more thing which I would like to tell here and really emphasize on it, many relatives and many patients or many we see the time is lost in decision making, you know, that कैसा सर्जरी करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, we'll take second opinion, we will ask somebody else also. So you have to understand that जितना जल्दी ब्रेन की सर्जरी हो जाएगी उतना अच्छा आउटकम आएगा, ठीक है। ब्रेन की सर्जरी कब करनी है उसके इंडिकेशंस क्लियर है, दैट इज, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी न्यूरो सर्जरी कम्युनिटी के अंदर, डॉक्टर्स कम्युनिटी के अंदर इट इज़ वेरी क्लियर कि भाई ये चोट है तो ब्रेन सर्जरी करनी है, ये चोट है तो ब्रेन सर्जरी नहीं कर सकते,
या फिर उसको बचा सकते हैं या फिर उसको मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। एक बार अगर हमने ये आपको सजेशन दे दिया कि नहीं भाई ये हेड ट्रोमा है, इनको अर्जेंटली सर्जरी चाहिए, देन इट इज़ अप टू यू कि आप कितना जल्दी डिसीजन लेते हैं। यूजुअली हमने देखा है कि कभी कभी पेशेंट्स 2-3 घंटे 4 घंटे तक ले लेते हैं डिसाइड करने में कि हम लोग कराएं नहीं कराएं सर्जरी। सो दैट इज़ वेरी वेरी पेनिंग फॉर अस, बिकॉज दैट इज़ द टाइम वेयर वी कुड हैव सेव्ड द ब्रेन। ब्रेन दबा पड़ा है ब्लड क्लॉट के नीचे, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग है, अब वो ब्रेन जिंदा था उस टाइम पर, बट आपने क्या बोला कि नहीं हमें नहीं करनी सर्जरी या फिर हमको इसको अवॉइड करना है। तो हम लोग अब टाइम ले रहे हैं, हम लोग दूसरे से तीसरे से चौथे से 4 दिन से पूछ रहे हैं, भाई हम हमारे एक रिलेटिव हैं उनसे पूछेंगे। सो उस टाइम में क्या होता है कि जो ब्रेन तो बेचारा दबा पड़ा है वहाँ पर, तो वो ब्रेन के काफ़ी सेल्स और काफ़ी ब्रेन और ज़्यादा डैमेज हो जाता है, सेकेंडरी डैमेजेस हो जाते हैं। अब वो सेकेंडरी डैमेजेस को ऑपरेशन करने के बाद हम रिकवर तो नहीं कर सकते। सो दिस इज़ वन थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड कि हमारी जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रही है ब्रेन के बारे में, तो हम लोग ब्रेन की फिजियोलॉजी, ब्रेन की फंक्शनिंग को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक है। और अब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जितना जल्दी इंटरवीन करेंगे ब्रेन के अंदर उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और अगर आप बात करें एडवांसमेंट्स की, तो यस देयर आर एन नंबर ऑफ रिसर्च विच आर गोइंग ऑन इन द ब्रेन। हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि लाइक अब रिसर्च चल रही है कि लाइक क्या ज़रूरत है कि सबको हड्डी निकाल के रख दें, या फिर कितने दिन के बाद जब ब्रेन की सर्जरी हो जाती है तो कई बार वी रिमूव द पार्ट द स्कल एंड कीप इन द एब्डोमेन और वी कीप इन द फ्रीजर, वी प्रिजर्व इट, और उसको फिर वापस कब लगाना है, ठीक है। तो 2015 से पहले ये था कि लाइक शायद कभी भी लगा दो कोई बात नहीं पड़ती, देन देयर इज अ डिक्टम लाइक 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में स्वेलिंग कम हो जाए तब लगाते हैं। बट नाउ डेज वी हैव रियलाइज्ड इट कि द पार्ट ऑफ द स्कल विच इज केप्ट बैक acts as a not only as a protection and a cosmetic effect, but it also prevents the atmospheric pressure acting on the brain. So when there is a exposure of brain to the atmospheric pressure, so there is a decrease in the perfusion or the circulation of the brain. और हड्डी रखने के बाद में क्या होता है कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाती है, तो पेशेंट्स की रिकवरी और ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है इन द कम्युनिटी सिंस लास्ट 6 to 7 years we've started keeping as soon as possible कि भाई अगर ब्रेन की स्वेलिंग कम हो गई, पेशेंट की पॉसिबल है कि ब्रेन अपनी नॉर्मल जगह पर आ गया, तो कोशिश कर रहे हैं कि हड्डी को वापस जल्दी से जल्दी रख दें। इवन हम लोग और ज़्यादा एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अब लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई रिसर्च करी जा रही है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर अगर ऐसा लगे कि भाई ज़रूरी नहीं है सबकी हड्डी निकालनी पड़े, अगर ऐसा लगे कि ब्रेन नॉर्मल है, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, जल्दी सर्जरी कर दी, ईडिमा नहीं है, ब्रेन में ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है, तो हम लोग उनकी हड्डी वापस उसी टाइम पर रख देते हैं। सो देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जा रही है, हम लोग इवॉल्व करते जा रहे हैं। एंड और भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बारे में और भी बातें करें। आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप प्लीज़ सेंड करिए, ठीक है। जो एडवांसमेंट्स हैं वो हो रहे हैं, एंड ऑल दीज एडवांसमेंट्स आर लाइक कि हम लोग किस तरह से सेकेंडरी डैमेज को प्रिवेंट करें। तो उसके लिए कुछ एक चीज़ ये भी हो रही है कि लाइक नई नई मेडिसिन लेके आ रहे हैं। देयर आर many chemical research which are going on, pharmaceutical research which are going on, like what are the chemical changes in the brain which are occurring, right? कि कौन से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, इनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें ब्लड टेस्ट से, ठीक है। सो बहुत सारी रिसर्च इस पर चल रही है, कौन से ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिससे मालूम पड़े कि पेशेंट का जो ब्लड क्लॉट है वो बढ़ रहा है या फिर देयर इज ए ब्लड क्लॉट इज इवॉल्विंग और नॉट। बट दीज आर इन अर्ली फेज ओनली, वी आर नॉट श्योर वेदर विल बी सक्सेसफुल इन दिस और नॉट, बट रिसर्च गोइंग ऑन। ऑल्सो एक और रिसर्च जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से चल रही है इस फील्ड के अंदर, वो है ब्रेन के अंदर का प्रेशर, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर कितना प्रेशर है, मान लो कि हमारा ब्रेन एक क्लोज्ड ऑर्गन है, अब अंदर किसी को चोट लगी है, अब अगर अंदर चोट लगी है और वो चोट बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, तो हम उसको कैसे पहचानते हैं? अभी हम उसको पहचानते हैं पेशेंट को देख के, पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन देख के। और जब पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि अगर पेशेंट बात नहीं कर रहा, बेहोशी की हालत में है, तो फिर बाद में हम उसको कैसे पूछेंगे कि भाई क्या आप कैसे हो, मतलब भाई
हम उसको कैसे ग्रेड करेंगे कि ये पेशेंट ज़्यादा सीरियस है, ये पेशेंट कम सीरियस है। कोई एक नॉर्मल इंसान को पूछेंगे तो भैया ये भी बेहोश है और ये भी बेहोश है, दोनों पेशेंट बेहोश हैं। तो उसके लिए 1972 के अंदर और ये GCS स्केल निकला था, ग्लासगो कोमा स्केल, तो उससे मेजर करते थे। आज भी हम लोग ग्लासगो कोमा स्केल को यूज़ करते हैं और ग्लासगो कोमा स्केल से हम लोग एक ऑब्जेक्टिवली मेजर करते हैं कि पेशेंट का क्लिनिकल ग्रेड कितना है। अब उसको और ज़्यादा समझने के लिए क्या हो रहा है, डिवाइसेस आ रहे हैं नए नए। अब हम क्या करते हैं कि डिवाइस इम्प्लांट कर देते हैं ब्रेन के अंदर, विच इज़ कॉल्ड ICP मॉनिटर, सो इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटर। तो हम लोग एक डिवाइस ऑपरेट करके एक डिवाइस लगा देते हैं ब्रेन के अंदर। नाउ दिस इज़ अ प्रेशर ट्रांसड्यूसर, सो ब्रेन के अंदर कितना प्रेशर है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है। अगर ये प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग बढ़ रही है, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग बढ़ रही है, हमको पेशेंट का स्कैन करके देखना चाहिए या फिर मेडिसिन बढ़ानी चाहिए। और अगर प्रेशर नॉर्मल है और कम हो रहा है, इसका मतलब हमारा ट्रीटमेंट सही चल रहा है एंड दिस पेशेंट इज गोइंग टू इम्प्रूव। सो दीज आर द सम थिंग्स विच आर इवॉल्विंग, but these are very costly currently in India, okay, and not available at many of the places. But yes, these are the things which will come in future, okay, and it may occur that in future we may be able to help more and more patients and more secondary damage जो patients को हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे. But still, I would tell you all to prevent the head injuries, दैट जो हमारी जो हेड इंजरीज हो रही हैं, जो प्राइमरी डैमेज हो रहा है वो कम से कम हो, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स ज़्यादा चलें और ना कि हम लोग जो सेकेंडरी इंजरीज को कर रहे हैं, सेकेंडरी इंजरीज को प्रिवेंट करने के जो भी हम लोग एज ए डॉक्टर कम्युनिटी कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। सो नाउ यू नो कि आप एक तो प्राइमरी इंसल्ट है, ऑब्वियसली उसको आप नहीं प्रिवेंट कर सकते, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, बट जो आपके हाथ में है दैट मीन्स जो सेकेंडरी डैमेज होने से आप बचा सकते हैं, टाइमली इंटरवेंशन के लिए आप डॉक्टर तक पहुंचा सकते हैं एंड डेफिनेटली अपना खुद का डिसीजन मेकिंग, क्योंकि उस टाइम पे जिसको चोट लगी है या जिसको हेड इंजरी हुई है वो खुद के लिए डिसीजन नहीं ले सकता, तो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइमली डिसीजन लें ताकि ब्रेन में और स्वेलिंग होने से बचा सकें। जैसे डॉक्टर ने कहा, हम डैमेज जो एक तो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो बाकी डैमेज हो रहा है एटलीस्ट उसको बचा सके ताकि ब्रेन को सेव किया जा सके। सो डॉक्टर, रिहैबिलिटेशन के बारे में आपने बात की, क्या आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे रोल ऑफ रिहैबिलिटेशन, कैसे ये रिकवरी में इम्प्रूव कर सकता है, क्या क्या रिहैबिलिटेशन मेथड्स हैं फॉर आफ्टर न्यूरोसर्जरी? सो लेट अस टेक इट वेरी जनरल एस्पेक्ट ऑफ इट कि ब्रेन को ट्रेनिंग चाहिए। तो अगर किसी को क्रिकेट सीखना है तो क्रिकेट एकेडमी में जाएगा, फुटबॉल सीखना है तो फुटबॉल एकेडमी में जाएगा, और एकेडमी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी उसको ट्रेनिंग मिलेगी। तो वैसे ही जब ब्रेन को चोट लगी है तो कौन सी चोट लगी है पहले तो ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। मान लो कि पेशेंट की मेमोरी वीक है तो उसको मेमोरी एक्सरसाइजेस देनी चाहिए। अगर पेशेंट का हाथ नहीं चल रहा है, पैरालिसिस है, ठीक है, डेफिनेटली फिजियोथेरेपी विल हेल्प द पेशेंट। एंड अब फिजियोथेरेपी के अंदर बात करेंगे तो फिजियोथेरेपी के अंदर हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। लाइक वन इज़ लाइक नो एक्टिव फिजियोथेरेपी, वन इज़ लाइक यू कैन गिव सम मोडालिटीज़, देन देयर आर रोबोटिक्स विच आर कमिंग इन, यू नो, विच कैन हेल्प द पेशेंट्स टू कंटिन्यूसली मूव द आर्म्स एंड फ्री द जॉइंट्स। और अगर कुछ भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डोंट यूज़ योर लिम्स फॉर सम टाइम, द लिम्स स्टार्ट गेटिंग क्रैम्प्ड, यू नो, एट्रोफी होने लग जाती है, आपके हाथ वीक होने लग जाएंगे, मसल्स वीक होने लग जाएंगी। एंड उस टाइम पे क्या होगा कि अगर पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि जब पैरालिसिस हो जाता है तो एक साइड का हाथ जम जाता है या फिर नो इट गोज इनटू स्पाज्म, दैट अकर्स बिकॉज ऑफ डिसयूज, दैट यू हैव नॉट यूज्ड इट एंड यू हैव नॉट मूव्ड इट, सो मसल्स गेट इनटू कॉन्ट्रैक्चर और दे गेट एट्रोफाइड, वो सूख जाती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए फिजियोथेरेपी, एक्टिव मोबिलाइजेशन, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। एंड न्यूरो रिहैब एज सच इज़ ए ह्यूज थिंग, यू नो। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाते हैं। अभी करंटली इंडिया के अंदर अगर न्यूरो रिहैब की बात करी जाए तो एज ए जनरल पब्लिक हम लोगों को यही लगता है कि बस एक फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, और फिजियोथेरेपी के कुछ एडवांस सेंटर्स हर शहर के अंदर आ रहे हैं धीरे धीरे, जो मतलब पेशेंट्स को एक्टिव मोबिलाइजेशन, पैरालिसिस वाले पेशेंट्स को भी विद सपोर्ट स्टैंड करके चलवाने में मदद करना, कुछ रोबोटिक्स की हेल्प लेना, आ रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। बट स्टिल द मेंटल ट्रॉमा
the psychological rehabilitation is still a huge gap in India. और इसके लिए we need to identify the people, those who are trained in it. We need to train more and more people, open more and more centers, and we have to collaborate and work with them. And it takes huge amount of time, you know. अगर हम लोग बात करें किसी पेशेंट को हमको एवेल्युएट करना है साइकोलॉजिकली, तो हमको बहुत सारा टाइम चाहिए, यू नो. अब मतलब ये नहीं है कि भाई हम लोगों को एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट, मतलब हर एक लोब का अलग फंक्शन देखना है कि वेदर हिज फ्रंटल लोब इज फंक्शनिंग, पैराइटल लोब इज फंक्शनिंग, वेदर उनकी मैथ की पावर ठीक है, वेदर उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की पावर ठीक है, उनकी मेमोरी कैसी चल रही है, वेदर ही इज़ ट्राइंग टू रीगेन हिज मेमोरी. सो ऑल दोज थिंग्स हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, और इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है. तो बेसिकली पार्ट ये है कि प्लीज़ गेट ओपिनियन फ्रॉम द एक्सपर्ट एंड डोंट टेक इट लाइटली. जो चीज़ें दिख जाती हैं वो तो है वीकनेस और कॉन्ट्रैक्चर, दैट कैन बी ट्रीटेड वेरी इजीली. बट जो चीज़ें नहीं दिखती हैं वो है साइकोलॉजिकल डैमेज टू द ब्रेन, लाइक योर ब्रेन एक्टिविटी, कि ब्रेन कितना काम कर पा रहा है. तो उस चीज़ को एवेल्युएट करने के लिए वी नीड अ ट्रेन्ड न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हु असेसेस योर ब्रेन एंड देन डिवाइसेस द रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कि भाई कैसे रिकवर करना है. इसका एक बहुत जनरल एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि कई पेशेंट्स होते हैं जो बोलना भूल जाते हैं, लाइक दे हैव प्रॉब्लम्स इन देयर स्पीच आफ्टर द सर्जरी और आफ्टर द हेड ट्रॉमा. So generally what we do in our OPDs is like, you know, we tell patients कि भाई आप क्या करें, आप कुछ नहीं करें, आप दिन में एक पैराग्राफ को रीड करेंगे, ठीक है. आप जब उसको जोर से बोलेंगे अपने रिलेटिव्स को बिठा के, फिर कोई नहीं है तो आप कांच के सामने बैठ के बोलेंगे. तो क्या हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू ट्रेन द जो भी ब्रेन बचा हुआ है, देयर इज अ डैमेज टू द ब्रेन दैट वी ऑल हैव एक्सेप्टेड, ओके. जो भी ब्रेन बचा हुआ है उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस या ब्रेन का पार्ट है उसके अंदर से बोलना कैसे सीखना है. सो बेसिकली इट इज़ मोर ऑफ अ ट्रेनिंग द ब्रेन rather than rehabilitating the brain, okay. So whatever the brain is remaining with us, or whatever the areas of the brain are not damaged, we have to train them in a different fashion so that the person is able to do at least up to the normal activities. देखिए, हम लोग उनको 100% तो कभी नहीं ला सकते, बट एटलीस्ट वी कैन मेक देम इतना कि दे कैन लीड अ नॉर्मल, इंडिपेंडेंट एंड अ वेरी प्रोडक्टिव लाइफ, ओके. सो दैट शुड बी अ गोल. So when you go and see how neuro rehab takes place at our National Institute in Bangalore, it is like, you know, they have centers for each and everything. They have a computer room training, they have a training for making the food, they have a training for stitching, they have a training bakery. So they train the people at least, okay, you have a damage, no problem, you know, you try to learn something so that you can be productive and, you know, you can be independent yourself. So as such you have to realize that this is a huge thing, and neuro rehab, we need to address it, and we need to address it as a community, not as a doctor or not as a center. A single center cannot provide everything. No, the social support and the training, you know, vocational training, all these things need a societal support, a support group. Wonderful. So rehabilitation is important, and for that it's not just the doctor or the rehabilitation center, it is the entire community that has to understand, and we have to try and train the person who is actually suffering, so that gradually, as rightly said by doctor initially in the talk, that new clinical pathways develop हो जाए, and कैसे brain बाकी areas को use करना शुरू कर दे for different functions. That is more important, and that is the role of rehabilitation when we talk about neuro rehab. So before I take the last question, I would request everybody to shower all the questions so that we can take up in the end, and also not only for the doctors, for medical professionals, or for the patients, it is also for the curious audience. We have with us Dr. Prashant Singh, and we are discussing about brain injuries and neurosurgeries. And I'm your host, Dr. Divya Agarwal, and we are on Bright Talks by Pacholi Aesthetics and Wellness, the #1 clinic in Delhi NCR as per the Times Healthcare Excellence Survey. So, Doctor, age की वजह से भी क्या results and outcomes differ कर सकते हैं?
Yes. बच्चों में अगर इंजरी हुई है तो इट Yes, विल yes, I रिकवर was बेटर. थिंकिंग लाइक अब एज में देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस. छोटे बच्चों के अंदर जो बोन्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, ठीक है. सो देयर सॉफ्ट बोन्स, प्लाइएबल. इवन जो स्कल होता है वो ओपन होता है, जो जॉइंट्स हैं वो पूरे जुड़े हुए नहीं हैं. तो मैनी टाइम्स जब पेशेंट बच्चों को चोट लगती है वो डिफरेंट होती हैं. और जो ओल्ड एज है उनके अंदर क्या होता है कि जो ब्रेन होता है वो श्रिंक होने लग जाता है. जब ब्रेन श्रिंक होने लग जाता है तो क्या होता है कि द जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्ट्रेच आउट हो जाती हैं. सो ब्रेन और स्कल के बीच में ब्लड वेसल्स होती हैं विच आर स्ट्रेच्ड आउट. ओके, सो विच आर स्ट्रेच्ड आउट. जब हमारी ओल्ड एज होती है तो क्या होता है कि जो वेन्स स्ट्रेच्ड आउट हैं, तो ओल्ड एज में क्या होता है कि अगर पेशेंट को थोड़ा भी चोट लग जाए, फॉर एग्जांपल पेशेंट घर के अंदर हैं और वो वॉशरूम के अंदर गिर गए या फिर सोफे से स्लिप होके गिर गए, और अब उनको छोटी सी चोट लगी है और छोटी सी चोट के अंदर ही उनके अंदर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने लग जाएगी. अब ऐसे पेशेंट्स के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि अगर एकदम से ब्लीडिंग होगी तो पेशेंट्स एकदम से अनकॉन्शियस हो जाएंगे, भाई बेहोश हो जाएंगे, याद नहीं आएगा उनको, तो एक्यूट ट्रोमा हो गया. बट कुछ पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि थोड़ी सी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और पेशेंट्स को ऐसा लगा कुछ नहीं हुआ है, पेशेंट को उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था. बट 1-2 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद में पेशेंट को हेडेक होना चालू हो जाएगा, वीकनेस होनी चालू हो जाएगी. तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर होता क्या है कि ब्लीडिंग धीरे धीरे होती है और वो कलेक्ट हो जाती है. तो ऐसी ब्लीडिंग को हम लोग कहते हैं क्रोनिक सबड्यूरल ब्लीडिंग, और ये ओल्ड एज में बहुत कॉमन है, ठीक है. और एक चीज़ का मैं थोड़ा सा यहाँ पे एम्फोसाइज करना चाहूँगा. ओल्ड एज के अंदर हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को कोमॉर्बिडीज़ हो जाती हैं इसी चीज़ के अंदर. लाइक पेशेंट्स आर ऑन हैविंग डायबिटीज़, पेशेंट्स आर हैविंग सम हार्ट कंडीशंस, हाइपरटेंशन है. तो दीज पेशेंट्स आर स्टार्टेड ऑन एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, ब्लीड मोर. तो क्या होता है कि इन जनरल पेशेंट तो बोले कुछ नहीं हुआ था, बस ही वॉज ट्राइंग टू गो आउट, और अपने बस बालकनी में खड़े थे या फिर बस अपने पोर्च में खड़े थे, पार्किंग में खड़े थे, वहाँ पर थोड़ी सी ठोकर लग गई और गार्डन में ही गिर गए या फिर बस घर के आगे स्लिप हो गए. और उस कंडीशन के बाद भी ऐसे जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर देखते हैं, जब स्कैन करते हैं तो देयर इज ए डिफ्यूज ब्लीड, बहुत बड़ा सा ब्लीड है, हेमेटोमा है. तो उन केसेस के अंदर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ओल्ड एज ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल एंड इज very prone to develop chronic subdurals, okay, and they are very at risk to develop these bleedings in the brain and large clots because of the antiplatelets and the anticoagulants which they are on generally, okay. बच्चों में as such हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों के अंदर जब चोट लगती है, so usually because of the pliability of the skull bones, इतनी जल्दी उनको मतलब जैसे ही चोट लगती है तो सीधा जो इम्पैक्ट है वो ब्रेन पे चला जाता है, ठीक है. स्कल इतना प्रोटेक्टिव नहीं होता, बट थोड़ा सा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है. अगर स्वेलिंग होती है, ब्रेन के अंदर कुछ ब्लीडिंग होती है तो थोड़ी सी स्पेस हमको अवेलेबल रहती है. बट छोटे बच्चों के अंदर ध्यान रखना है कि स्कल सॉफ्ट होता है तो चोट ना लगे. इन जनरली हमने बहुत देखा है, कॉमन हमारे हॉस्पिटल के अंदर भी बड़ा कॉमन है कि बच्चे फर्स्ट फ्लोर से गिर गए, सेकंड फ्लोर से गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए. So please, I request you all, please don't allow your kids to be on the open balconies, unsecured balconies. Okay, please save them from their falls. And जो सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों पर भी मतलब अगर आपके रेलिंग नहीं है तो एटलीस्ट यू कैन पुट फ्लावर पॉट्स ऑन इट, यू कैन पुट सम. आप रस्सी बांध सकते हैं, कुछ नहीं, लकड़ी लगा के रस्सी बांध दीजिए ताकि बच्चे जितना हो सके ये फॉल्स को प्रिवेंट करिए बच्चों की, छोटे बच्चों की एज ग्रुप में, ठीक है. वही है. तो मैं उनको एक ही एडवाइस देता हूँ कि अपने ब्रेन पे कम से कम जोर डालिए, ठीक है. हम लोग अगर हम बात करें, इफ़ यू गो एंड रीड द टॉपिक्स ऑफ द न्यूरो रिहैब, एंड आप कोई भी ले लें, एनी सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, दे हैव अ डिसिप्लिन लाइफ. व्हाट दे डू इज़ लाइक एवरीथिंग इज डिसाइडेड कि भाई सुबह 6 बजे उठना है, 6:30 बजे ये काम करना है, 7 बजे हमको चाय पीनी है, 8 बजे हमको नाश्ता करना है, ठीक है. सो दैट इज़ लाइक अ दिनचर्या, पूरी दिनचर्या डिसिप्लिन लाइफ सेट हो जाती है. जब ये डिसिप्लिन लाइफ सेट हो जाती है ना, तो क्या होता है कि ब्रेन के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं पड़ता. तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ लाइक कि एक दिन हमने खाना 7 बजे दे दिया पेशेंट को, अगले दिन हम उसको 11 बजे खाना दे रहे हैं, तो बाकी के 3 घंटे
उसकी बॉडी कहाँ से रिसोर्स यूज़ कर रही है, कहाँ से ग्लूकोज लेके आ रही है। तो ये बॉडी के लिए एक स्ट्रेस है, उसके हार्मोनल स्ट्रेस है कि वो कहीं ना कहीं से अपने मसल तोड़ रही है या फिर फैट को बर्न करके ग्लूकोज प्रोवाइड कर रही है ब्रेन को, कीटोन्स प्रोवाइड कर रही है। दैट इज अ स्ट्रेस टू द बॉडी। अब ये जो स्ट्रेस होते हैं बॉडी के अंदर, यही इम्प्लीकेट करते हैं कि पेशेंट सीजर्स के साथ आ गए, या पेशेंट्स को हेडेक हो गया, या पेशेंट्स को कुछ और सिम्टम्स हो गए, ठीक है, और रिहेबिलिटेशन ठीक से हुआ नहीं। भाई ब्रेन को हमको रिकवरी करवानी है, तो उसको बिना मतलब का बाकी का स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? ब्यूटीफुल। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि पेशेंट्स को अगर हेड इंजरी हुई है और हमें करना है कि उनको रिहैब ठीक से देना है, सो वी शुड डिवाइड देयर होल सिस्टम, इकोसिस्टम, डिवाइस देयर 24-hour प्लान, ओके, एंड दैट हैज टू बी फॉलोड, ओके। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि मेनी टाइम्स आई हैव सीन दैट ओनली वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट, and others are like, no, we cannot take care of the patient, or no, there is lot of discrepancies in it. So the one person cannot take care of the patient completely, okay. So what has to be like, हर एक आदमी का We want to take is क्या हाइपरटेंशन की वजह से जब ट्रॉमा हो जाता है, न्यूरोसर्जरी की नौबत आती है, तो उस टाइम पे डेफिनेटली लोग तब भी बहुत जगहों पे काउंसलिंग लेते हैं या पूछते हैं, तो उस टाइम पे भी टाइम का कंसिडरेशन है क्या? तब भी हमको क्विकली इंटरवीन करना चाहिए, या हम, बिकॉज दैट इज समथिंग, इट इज नॉट अ इंजरी एक्चुअली, एंड नहीं समझ पाते हैं हम कि हाइपरटेंशन की वजह से कभी लोगों को ब्रेन में न्यूरोसर्जरी की भी नौबत आ जाती है, वी हैव सीन। so देखिए, this is a topic which is called intraparenchymal bleed, hypertensive bleeds, okay. So होता क्या है कि पेशेंट्स की ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से देर इज़ अ रप्चर ऑफ वेसल इन द ब्रेन, एंड दैट लीड्स टू अ लार्ज ब्लड क्लॉट विद इन द ब्रेन, ओके। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रोक, ओके। सो स्ट्रोक दो तरह का हो सकता है, वेदर इट इज़ ए हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्चेमिक स्ट्रोक। तो आपको समझना पड़ेगा कि हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब नस फट गई है, अंदर ब्लड क्लॉट हो गया है, ब्लड निकल गया है ब्रेन के अंदर। इस्चेमिक स्ट्रोक मतलब कि भाई कोई हार्ट के अंदर ब्लड क्लॉट था, या पाँव के अंदर ब्लड क्लॉट था, या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्लेक बन रही थी, ब्लड वेसल थी, ब्लड वेसल ब्लॉक हो रही थी धीरे धीरे, उसके अंदर फैट जम रहा था और ब्लड वेसल पूरी तरह से ब्लॉक हो गई, या फिर वो रप्चर हो गया प्लेक, उसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स बन गए, और ये ब्लड क्लॉट्स ने आगे जाके ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई की जो वेसल है उसको ब्लॉक कर दिया, आर्टरी को। अब आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो जिस पार्ट को ये आर्टरी सप्लाई कर रही थी उसको खून नहीं मिला, तो ये इस्चीमिक ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट अलग है। भाई इस्चीमिया हुआ है, आपकी ब्लॉकेज हो गई है आर्टरी की, तो हम लोग क्या करना चाहेंगे, ये भी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना चाहेंगे, हमें उसको खोलना है। अब जब हमें उसको खोलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, खून को पतला करने की दवाइयाँ देनी, सोच समझ के चलना पड़ता है कि हम लोग ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो क्या होगा, ब्रेन की ब्लड सप्लाई बिल्कुल कम हो जाएगी, और अगर ब्लड प्रेशर को कम नहीं किया तो ये ब्लड क्लॉट और बढ़ सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम लोगों को आईसीयू में रखना पड़ता है और एकदम केयर में रखना पड़ता है कि इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। अब कई बार क्या होता है कि ब्लड क्लॉट इतना बड़ा होता है कि उसने एक पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कर दी है। अब जब एक पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग कर दी है कि उस पार्ट की जो ब्लड वेसल्स थी उनको भी दबा रहा है और अपोजिट साइड के ब्रेन को भी वो दबा रहा है, ठीक है। उस केस के अंदर क्या होता है कि अगर ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम इस ब्लड क्लॉट को नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि ये जो ब्लड क्लॉट है ये इतना प्रेशर बना देगा कि ये सेम साइड की ब्रेन को तो डैमेज करेगा ही, अब साथ में अपोजिट साइड के ब्रेन को भी डैमेज कर देगा, एंड दीज पेशेंट्स कैन लीड टू डेथ, ठीक है। तो उस केस में एज ए लाइफ सेविंग मेजर वी नीड टू रिमूव द ब्लड क्लॉट, ठीक है। और उसके अंदर प्रिंसिपल सेम है, ब्रेन के अंदर प्रेशर बहुत बढ़ गया है, अब ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ गया है तो प्रेशर कम करने के लिए वी नीड टू रिमूव द ब्लड क्लॉट, और अगर ब्लड क्लॉट निकालने के साथ साथ स्वेलिंग भी है ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा तो हम लोग पार्ट ऑफ स्कल भी रिमूव करते हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी। कुछ पेशेंट्स के अंदर हम लोग सिर्फ ब्लड क्लॉट निकालने से काम चल जाएगा, कुछ पेशेंट्स के अंदर हम लोग छोटा सा ब्लड क्लॉट होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे भी दवाइयों से कंट्रोल हो रहा है। कुछ पेशेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि ब्लड क्लॉट वहाँ से ब्लीडिंग हुई और ब्रेन के अंदर जो पानी है CSF है वेंट्रिकल्स के अंदर चला गया,
तो अगर वेंट्रिकल्स के अंदर चला गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वहाँ से वेंट्रिकल्स के अंदर CSF को ड्रेन कर देते हैं, तो CSF के साथ साथ पानी मिक्स होकर धीरे धीरे बाहर आता रहता है। तो हम लोग एक ड्रेन डाल देते हैं ब्रेन के अंदर, इसको कहते हैं एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन। सो ये है टॉपिक्स हैं, मतलब दीज आर द थिंग्स विच वी कैन डू एज ए न्यूरोसर्जन, ठीक है। एंड यूजुअली कोई भी न्यूरोसर्जन नहीं चाहता, दिस इज वन थिंग लाइक एज अ सर्जन वी डोंट गो एंड जंप अपॉन लाइक हमको ऑपरेट करना है। वी ओनली डिसाइड फॉर द सर्जरी ओनली व्हेन इट इज एज अ लाइफ सेविंग मेजर, or like when we are sure that surgery will definitely help the patient instead of damaging or causing harm to the patient. Such a beautiful thing in the end doctor has summed up. Generally हम लोग को यही लगता है कि सर्जन सिर्फ सर्जरी करना चाहते हैं and वो other side of the story नहीं समझना चाहते, which is so untrue and it is actually the biggest myth. Like Dr. Prashant has said, surgeon always thinks कि क्या surgery ही only choice है उनके पास, then only they decide to go forward for it. Otherwise they try to use other modalities जिससे कि surgery ना करनी पड़े. So that was such an amazing session. Thank you so much, Dr. Prashant. It was a wonderful session. And we would want to again call you for such a deep subject it is. There are so many topics that we have untouched. We would definitely want to touch base those topics again. Thank you so much, sir. Thanks.